Hello students, today through this video I would like to discuss how to solve the reading specifically कि जब आपको फीचर्स को मैच करना होता है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं. For this we have a strategy named as RUP method. I have discussed the same method in my previous videos also. So R stands for read the question first of a particular passage, then U means underline the keywords and understand the demand, P for passage reading. Once we will do this technique, then we will switch to the passage. सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन रीड करेंगे, then हम पैसेज पे स्विच करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और पैसेज पे स्विच कर जाते हैं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू विल गेट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज इन academic it there is a probability that they will get the answers in the jumble, कि वो जंबल में भी आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. So I suggest them to follow this technique for solving your reading. So we will do the same thing in this reading. Question 15 to 19. Classify the following as relating to A. The silk of Bombyx mori. B. Dragline silk of Nephila. C. Capture silk of Nephila clavis. तो यहाँ पे आपने देखना है ये कैप्चर सिल्क है, ये ड्रैग लाइन सिल्क का है, ये सिल्क ऑफ बॉम्बेक्स मॉरी का है. तो हमने यहाँ पे फीचर्स दिए हैं, इसको मैच करना है. मैच करके हमने आंसर्स कैसे लिखने हैं, वी जस्ट नीड टू राइट द अल्फ़ाबेट. हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखना है ए बी सी. वी हैव टू राइट द लेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरी. तो क्या है, फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ अ वेब, कि ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं फ्रेमवर्क को वेब के. ये मोर इलास्टिक सिल्क होते हैं, अलाउ करते हैं प्रीडेटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडेटर, शिकारी. हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड प्रे. इट्स पी आर ए वाई. प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना. इट्स पी आर ई वाई, प्रे. इसका मतलब है शिकार करना. तो दोनों में डिफरेंस है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज सेम. Then the next one is single strand can be up to 900 meters long, strongest silk. तो अब हमें हिंट हो गया कि हमें 900 मीटर, स्ट्रॉन्गेस्ट सिल्क, इलास्टिक सिल्क, फ्रेमवर्क ढूंढना है और प्रीडेटर रिगार्डिंग ये वर्ड्स को सर्च करना है. जहाँ पे भी हमें ये वर्ड्स मिल जाएंगे हम अपने आंसर को वहीं से लोकेट कर लेंगे. तो अब हम क्या करते हैं, पैसेज पे मूव करते हैं. द स्ट्रेंथ, टफनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सिल्क कंटिन्यू टू फैसिनेट साइंटिस्ट हु वंडर what gives this natural material its unusual qualities. Finer than human hair, lighter than cotton, and ounce for ounce strong than steel, silk is of special interest of material researchers. They are trying to duplicate its properties and synthesize it for large scale production. Silk holds the promise of wear resistant shoes and clothes, stronger ropes, nets, seat belts, and parachutes, rust free panels and bumpers for automobiles, improved sutures and bandages, artificial tendons or ligaments, sports for weakened blood vessels, as well as bulletproof vest. Many insects treat silk of varying quality. Best known is the moth Bombyx mori, whose caterpillar is commonly known as the silkworm. तो बेस्ट इंसेक्ट क्या है कि बॉम्बिक्स मॉरी है, जिसके क्या नाम से जाना जाता है, कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है. It spins its cocoon from a single thread between 300 and 900 meter long. So here we can check, we have get the keyword. हमें कौन सा कीवर्ड मिला है, 900 मीटर्स मिला है. किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, बॉम्बिक्स मॉरी के बारे में बात हो रही है. तो हम कह सकते हैं RUP मेथड से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व हुआ है, इट्स 18. अगर 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, 900 मीटर के बारे में बात हो रही है, तो आंसर क्या आएगा बॉम्बिक्स मॉरी के लिए, वी विल मार्क द ऑप्शन ए. देन but the focus of the scientific attention today is on spider silk, tougher, stretchier and more waterproof than silkworm strands. Spider makes as many as 7 different types of silk, but one spider and 2 types of silk are at the center of the intense interest. The spider is the golden warp weaving spider Nephila clavis. Its 2 silk under investigation go by on एवोकेटिव नेम्स ड्रैगलाइन एंड कैप्चर. तो ये जो नेफिला है इसी के आगे दो क्लासिफिकेशंस है. वन इज द ड्रैगलाइन, अनदर इज द कैप्चर. इफ आई टॉक अबाउट द ड्रैगलाइन, ड्रैगलाइन इज द सिल्क विच फॉर्म्स द फ्रेम ऑफ द व्हील शेप्ड वेब्स. तो कौन सा बनाता है फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैगलाइन बनाता है. तो यहाँ पे क्या है, ड्रैगलाइन सिल्क ऑफ द नेफिला. तो आंसर क्या मार्क कर सकते हैं हम, बी. लेकिन कौन से क्वेश्चन के लिए मार्क करेंगे, 15 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन में बात हुई थी फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द वेब. 15 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी. यहाँ से हमारा फर्स्ट लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. देन आगे रीड करते हैं, अनेबल द डैंगलिंग स्पाइडर टू ड्रॉप डाउन एंड ग्रैब इट्स प्रे. अब ये क्या करते हैं, जो डैंगलिंग करते हैं स्पाइडर को, कि वो ड्रॉप डाउन करे और ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है खींचना अपने शिकार को. तो यहाँ पे भी किसके बारे में बात
बात हो रही है, सेम थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग है, ड्रैगलाइन सेल के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स ड्रैगलाइन कौन सा है, बी ऑप्शन है। लेकिन क्वेश्चन प्रेडेटर के बारे में कहाँ पे बात हुई थी, 17 क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन का भी जो आंसर बनता है दैट इज बी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं RUP मेथड देख सकते हैं क्या बेनिफिट है। सबसे पहले 18 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, फिर 15, देन 17। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड लाइक टू टेल यू थ्रू दिस वीडियो दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस इन द सिक्वेंशियल मैनर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फाइन। The next sentence is, this silk exhibits a combination of strength and toughness unmatched by high performance of synthetic fiber. ये जो सिल्क है एग्जिबिट करता है किसके कॉम्बिनेशन को, स्ट्रेंथ के, टफनेस के, जिसको कोई भी मैच नहीं कर सकता है बिकॉज हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक फाइबर है ये। तो यहाँ से क्या सॉल्व हुआ है हमारा 19 क्वेश्चन, वी कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट सिल्क, क्योंकि इसका मैच किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता है। सो इट मीन्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को डायरेक्ट हाईलाइट नहीं किया गया। वी नो दिस वेरी वेल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज इन द इंग्लिश। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, कंपैरेटिव क्या है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे अनमैच वर्ड यूज़ कर दिया है कि इसकी स्ट्रेंथ को कोई अनमैच नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सिल्क। दे हैव रिफ्रेज द सेंटेंस वेरी ब्यूटीफुली एंड स्मार्टली। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 19 भी सॉल्व हो गया है। ड्रैगलाइन के बारे में ही बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे, बी। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन। आगे पैरा में देखते हैं, कैप्चर सिल्क इज द रीसाइलेंट सब्सटेंस एट द सेंटर ऑफ द वेब। To catch a speeding insect, it may stretch to almost 3 times its original length. Insects get entangled in this sticky web because the stretchiness of the capture silk lets the web move back and forth after the insect hits. If the web were stiff, the insect might just bounce off, whereas dragline is stronger. Capture silk is more flexible, 5 times more flexible in fact. तो फ्लेक्सिबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उसके इलास्टिसिटी के बारे में बात करिए, किसके बारे में, कैप्चर सिल्क की। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, कंपैरिजन किया गया है ड्रैगलाइन। अगर ड्रैगलाइन स्ट्रॉन्गर है तो कैप्चर सिल्क क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सॉल्व हो गया है। 16 के लिए वी विल मार्क द ऑप्शन सी, क्योंकि कैप्चर के बारे में बात सी ऑप्शन में की गई है। सो आई वुड लाइक टू suggest you to solve your reading in the same way. I hope you like this video. Wish you very best of luck. Thank you very much.